Welcome to Edviz Learning. So in last lecture, we have started with problem set 1 and we have completed up to second question, and now we are going to start with question number 3. Before that, we need to revise some properties. Okay, पूरे चैप्टर में जितने प्रॉपर्टी हमने पढ़े हैं उसमें से जो क्वेश्चन में दिया है या फिर जो आपको फाइंड करना है अकॉर्डिंगली विल गो फॉर अ प्रॉपर्टी. ओके, क्या क्या प्रॉपर्टी था अपने पास? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2. फिर अगर बेस इक्वल है तो आंसर आएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू h1 अपॉन h2. अगर हाइट इक्वल है तो आंसर आएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. और अगर दोनों इक्वल है तो आंसर आएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1. देन हमारे पास था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, फिर था कन्वर्स, फिर एंगल बाइसेक्टर, फिर कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर एंड देन प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस. उसके बाद हमने देखा था सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी वाज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर, दैट इज एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन व्हिच we need to solve problem set. Okay, so starting with question number 3 now. Ratio of areas of two triangles with equal heights. So in this question it is clearly mentioned that height is equal. और अगर height equal है तो फॉर्मूला क्या है अपना? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. Why so? Because it is already given that height is equal. So ratio of areas of two triangles with equal heights is equal to 2:3. If base of smaller triangle is 6, what is the corresponding base of bigger triangle? तो छोटे ट्रायंगल का बेस आपको 6 दिया है, बड़े ट्रायंगल का बेस आपको फाइंड करना है. Therefore, let area and base of smaller triangle be a1 and b1. छोटे ट्रायंगल का एरिया a1 कंसीडर किया, उसका बेस b1 कंसीडर किया. Let the area and base of bigger triangle is a2 and b2. As it is mentioned that height is equal, both the triangles have equal heights and therefore we have a1 upon a2 is already given as 2 upon 3 and b1 is equal to 6. b1 is base of smaller triangle. तो दोनों में से स्मॉलर ट्रायंगल कौन है? a1, बिकॉज a1 का एरिया कितना है? 2. a2 का एरिया कितना है? 3. सो 2 इज अ स्मॉलर नंबर, सो a1 इज अ स्मॉलर ट्रायंगल, उसका बेस स्मॉलर कितना है? वो 6. नाउ वी हैव अ फॉर्मूला as it is mentioned that these are the triangles with equal heights. So a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, triangles with equal heights. Now substitute the values, value substitute किया and then go for a cross multiplication, that is b2 is equal to 3 into 6 upon 2. Now just go for cancellation, you will get answer as b2 is equal to 9 centimeter. cancellation करेंगे 3 का टेबल से 2 का टेबल से 2 1 जा 2 3 जा 6 and 3 into 3 is 9 centimeter. So b2 is equal to 9 centimeter. So base of the bigger triangle is equal to 9 centimeter. क्वेश्चन ने बोला है बिगर ट्रायंगल का बेस कितना आएगा, तो वो कितना आया? 9 centimeter. ठीक है, सो मेक अ नोट ऑफ दिस, विल रिवाइज इट फास्ट. दैट इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज 2:3. तो सो दो एरिया है ट्रायंगल के, उसको एज द नेम्स ऑफ ट्रायंगल आर नॉट गिवन, जैसे मैंने बोला था उसको हमने a1 और a2 कंसीडर कर लिया. अगर आपको a1 a2 कंसीडर नहीं करना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको दो ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. एक का नाम सपोज ABC दिया, दूसरे का नाम सपोज PQR दिया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट ABC एंड PQR आर द ट्रायंगल. अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ करने का मेथड से करते हो तो, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इफ द नेम्स ऑफ ट्रायंगल आर नॉट गिवन यू कैन कंसीडर a1 and a2 are the areas of triangle, b1 and b2 are the bases of triangle. So formula a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. Put the values, value put किया and go for a cross multiplication, you will get answer b2 is equal to 9 centimeter. So that's all about question number 3. Okay, now starting with question number 4, that is in given figure. So this is the given diagram. ABC and DCB are angles are equal to 90 degree. This angle is equal to 90 degree. This angle is also equal to 90 degree. AB is equal to 6. It is given. And DC is equal to 8. Question. Find the areas of these two triangles. Now it is very simple. Find the areas of these two triangles. So triangle ABC and triangle DCB. You can clearly see in the diagram. देखो diagram में कौन सा triangle का area find करना है? ABC and DCB. So suppose ये है अपना ट्रायंगल ABC. पूरे डायग्राम में से इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूं, ठीक है. और अपना दूसरा ट्रायंगल ये है सपोज DCB. ठीक है, तो ये एंगल है 90 डिग्री का, एज वेल ये एंगल भी है 90 डिग्री का. ठीक है, व्हाट इज गिवन? दिस इज 6,
this is 8. Question is find the areas of these two triangles. So you can see the diagram. यहां पर BC बेस है, इधर भी BC बेस है. इसका मतलब दोनों ट्रायंगल में दे हैव इक्वल बेसेस. कैसे पता चला वो बेस है करके? सी 90 डिग्री एंगल दिख रहा है यहां पे. सो AB इज अ हाइट, BC इज अ बेस. ओके, देन DC इज अ हाइट, अगेन BC इज अ बेस. सो BC रिपीट हुआ है ट्रायंगल में. तो दिस टू ट्रायंगल हैव कॉमन बेस BC. और अगर बेस कॉमन है तो हमारे पास आंसर है A1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट. हाइट कौन है? AB एंड DC. सो इट इज AB अपॉन DC. So therefore area of triangle ABC upon DCB is equal to 6 upon 8. Now go for cancellation. इसको कैंसिल करेंगे हम लोग. 2 के टेबल से अगर कैंसिल करते हैं तो 2 3 6 एंड 2 4 8. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ये आपको फाइंड करना है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल टू कितना आंसर आया? 3 अपॉन 4. ठीक है, रिवाइज करते हैं इसको. These are the two given triangles. It is very simple to identify. ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DCB, दोनों में देखो मैंने दोनों ट्रायंगल अलग ड्रॉ किया. दोनों में बेस BC विच इज कॉमन, बेस BC विच इज कॉमन प्रेजेंट इन बोथ द ट्रायंगल्स एंड देयरफॉर दीज आर द ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस. सो इट्स आंसर इज हाइट अपॉन हाइट. ओके, सो मैंने हाइट का आंसर लिखा, कैंसलेशन किया एंड गेट द आंसर 3 अपॉन 4. दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन गिवन फिगर, सो दिस इज द गिवन डायग्राम. अगेन PM इज इक्वल टू 10. PM इज इक्वल टू 10. ओके, ट्रायंगल कौन सा है? PQS, ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, PQS ऊपर वाला ट्रायंगल. और कौन सा ट्रायंगल है? QRS, ये नीचे वाला ट्रायंगल. ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल. सो ये दोनों में देखो क्या है कॉमन? इन दोनों में दिस इज द बेस विच इज कॉमन. मतलब आप अगर ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम बोलोगे PQS तो इसमें QS आ रहा है, PM हाइट है, PM परपेंडिकुलर है मतलब वो हाइट है, तो QS बेस हो जाएगा. यहां पे RN परपेंडिकुलर है तो बेस क्या बनेगा? QS. इसका मतलब दोनों ट्रायंगल में QS is a segment which is common and which is base. So in triangle PQS and QRS we have common base QS, and as the base is common we have answer with us, that is area triangle PQS upon area triangle QRS is equal to PM upon NR, height upon height. Put the values. ट्रायंगल का एरिया इज 100 अपॉन 110 दिया है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 10 अपॉन एनआर. ये आंसर 10 वहां पे दिया है, एनआर आपको फाइंड करना है. देन गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. एनआर इज इक्वल टू 10 इंटू 110 अपॉन 100. देन गो फॉर कैंसलेशन. क्या क्या होगा देखो आंसर, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? 11 बचा है देखो. सो एनआर इज इक्वल टू 11. सो फाइंड द आंसर फॉर एनआर. तो एनआर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर. क्या किया है क्वेश्चन में? ट्रायंगल का नाम हमारे पास है. ओके, ये दोनों ट्रायंगल में QS इज द बेस विच इज कॉमन. सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. QS इज द बेस विच इज कॉमन. तो QS बेस है, जो बेस कॉमन है दोनों में, तो हमारा आंसर आएगा एरिया ऑफ वन ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट. तो ऊपर वाले ट्रायंगल का हाइट है PM, नीचे वाले ट्रायंगल का हाइट है RN. तो उसको लिखा, देन वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किया एंड देन गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू गेट फाइनल आंसर. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ट्रायंगल MNT सिमिलर ट्रायंगल QRS. नाउ इस क्वेश्चन में हमको पहले से दिया है कि ट्रायंगल क्या है? सिमिलर. ट्रायंगल क्या है? सिमिलर. अगर ट्रायंगल पहले से सिमिलर दिया है तो क्या है फॉर्मूला? यस, क्या है फॉर्मूला? इट इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो, दैट इज S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर. ऑल्सो इट इज H1 square upon H2 square. Also it is M1 square upon M2 square. Also it is P1 square upon P2 square. तो साइड्स, हाइट, मीडियन एंड पेरीमीटर. इसमें से अपने क्वेश्चन में क्या यूज किया है? देखो वर्ड यूज किया है अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट ऑफ ट्रायंगल. सी द डायग्राम. इन फर्स्ट ट्रायंगल TA इज अ अल्टीट्यूड, मतलब हाइट. अल्टीट्यूड का मतलब अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम वर्टेक्स ऑन अपोजिट साइड. यहां पर भी देखो SB इज अ अल्टीट्यूड, मतलब वो क्या है? हाइट है. सो क्या क्या दिया है देखो, ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट S इज 9, फाइंड द रेशियो. ये रेशियो आपको फाइंड करना है. और हाइट का जो आंसर है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर. लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T इज 5, ये है 5 और ये आपको दिया हुआ है 9. देन फाइंड द रेशियो. सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. ट्रायंगल पहले से सिमिलर है.
लेट टी एंड एस बी आर करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स, सो बोथ द ट्राइंगल्स का एरियाज इज इक्वल टू टी ए स्क्वायर अपॉन एस बी स्क्वायर, दैट इज एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जैसे मैंने बोला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू h1 स्क्वायर अपॉन h2 स्क्वायर, मतलब हाइट का स्क्वायर, तो ये हाइट है दोनों। सो टी ए अपॉन एस बी का आंसर क्या है 5 अपॉन 9 ब्रैकेट स्क्वायर, सो स्क्वेयरिंग करेंगे तो आंसर इज इक्वल टू 25 अपॉन 81, सो देयरफॉर दिस इज द फाइनल आंसर 25 अपॉन 81। किस बात का आंसर है ये, इस ट्राइंगल का। सो इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल टू 25 अपॉन 81। जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है उसी फॉर्म में हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। ओके, इसको रिपीट करने वाला हूं। इट इज वेरी सिंपल, एज द ट्राइंगल्स आर गिवन एज सिमिलर। ट्राइंगल अगर सिमिलर दिया है तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू h1 स्क्वायर अपॉन h2 स्क्वायर। अच्छा, h क्यों लिया, बिकॉज अपने क्वेश्चन में h मतलब हाइट का आंसर दिया है। हाइट का मतलब क्वेश्चन में वर्ड क्या यूज किया है, अल्टीट्यूड। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर अपॉन अल्टीट्यूड स्क्वायर। वैल्यू पुट किया, स्क्वेयरिंग किया, एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इन अ गिवन डायग्राम। सो दिस इज अ गिवन डायग्राम। क्या है क्वेश्चन में, a dash d dash c, a dash d dash c, that's these 3 points are collinear, also b dash e dash c, b dash e dash c, so these points are also collinear, d is parallel to ab। क्वेश्चन में दिया है कि ab and d are parallel, some measures are given, ad is equal to 5, dc is equal to 3, bc, ये कंप्लीट bc इज इक्वल टू कितना है 6.4, ये पूरा कितना है 6.4। क्या फाइंड करने बोला है, b को फाइंड करने बोला है। b फाइंड करने बोला है तो उसको क्या कंसीडर किया, x कंसीडर किया। सो लेट b इज इक्वल टू x। b अगर x है तो देखो ये पूरा bc इज इक्वल टू b प्लस ec, ये स्टेप bc इज इक्वल टू b प्लस ec। नाउ bc का आंसर है 6.4, b को कंसीडर किया x, c ऐसे रहेगा। अभी c मुझे अगर फाइंड करना है तो x को मैं ये साइड भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा आंसर 6.4 माइनस एक्स, देयरफॉर c इज इक्वल टू 6.4 माइनस एक्स। तो ये सब आंसर आ गए। अभी किस बात का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, d इज पैरेलल टू ab, इन ट्राइंगल ABC d पैरेलल टू ab। और अगर क्वेश्चन में अगर पैरेलल लाइन दिया है तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, अगर क्वेश्चन में पैरेलल लाइन दिया है तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यस कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यस इट इज करेक्ट, बेसिक proportionality theorem। why, because line is parallel। so in triangle ABC what is given here is parallel line, so in triangle ABC D is parallel to AB, and as it is given parallel then we have by basic proportionality theorem answer CD upon DA, here CD upon DA is equal to CE upon EB is the answer for basic proportionality theorem। okay, now substitute the values, 3 upon 5, CD का आंसर कितना है 3, TA का आंसर कितना है 5, ओके, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय, उसका आंसर है 6.4 माइनस एक्स अपॉन एक्स। गो फॉर अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज x इंटू 3 इज 3x, फिर 5 से इस पूरे टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है। सो इट इज 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 6.4 इज 32, 5 इंटू माइनस एक्स इज माइनस 5x, देयरफॉर वी हैव 3x एज इट इज। ये 5x को हमने यहां पर शिफ्ट किया तो ये माइनस का क्या बन गया प्लस, इज इक्वल टू 32। सो इट इज 8x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 8 से डिवाइड किया 32 को, सो हियर x इज इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन में x इज इक्वल टू क्या आया 4। क्या बोला है क्वेश्चन में फाइंड करने को, b फाइंड करने बोला है, तो b का आंसर मतलब x, एंड देयरफॉर b इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ओके, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस, विल रिवाइज इट क्विकली। इन द गिवन डायग्राम, ये गिवन डायग्राम है, इसमें हमको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, d एंड ab आर पैरेलल इज गिवन, ये 3 ये 5, ये पूरा था 6.4। क्वेश्चन में क्या बोला है, b को फाइंड करो, तो लेट अस कंसीडर b एज अ x। तो ये फर्स्ट स्टेप में हमने कंसीडर किया b एज अ x। पूरा bc कितना है b प्लस c, तो पूरा bc इज इक्वल टू b प्लस c, ये 6.4, ये x प्लस c, x को हमने शिफ्ट किया तो माइनस हो जाएगा, तो c बिकम्स 6.4 माइनस x। नाउ वी आर ऑलरेडी गिवन दैट लाइन इज पैरेलल, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एंड एज द पैरेलल लाइन इज गिवन वी हैव अ प्रॉपर्टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो इन ट्राइंगल ABC
डी पैरेलल टू ई बी, सो सी से स्टार्ट करेंगे हम लोग आंसर लिखने को, सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू सी अपॉन ई बी, ओके, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम. नाउ पुट द वैल्यूज. 3 अपॉन 5, सी डी का आंसर 3, डी ए का आंसर 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर 6.4 माइनस एक्स अपॉन एक्स. गो फॉर अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 3 इज 3x, 5 इंटू ये पूरा ब्रैकेट, तो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 इंटू 6.4 इज 32, 5 इंटू माइनस एक्स इज माइनस 5x, ये 5x ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐड करेंगे 8x हो जाएगा, 8 से डिवाइड किया 32 को, x इज इक्वल टू 4. क्या फाइंड करना है? b मतलब क्या है? x. कितना आया x का आंसर? 4, तो b इज ऑल्सो इक्वल टू 4 यूनिट्स. ठीक है, सो दिस फॉर क्वेश्चन नंबर 7. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8. In figure, PA segment QB, RC segment SD are perpendicular to line AD. See in the diagram, line AD को क्या क्या है देखो, परपेंडिकुलर PA, QB, RC, SD are perpendicular to this line AD. ये फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट लाइन में हमको दिया है. AB is equal to what? 60. ये AB का आंसर जो है वो कितना दिया है? वो 60. BC का आंसर कितना दिया है? 70. ठीक है, एंड सी डी का आंसर कितना दिया है? 80. एज वेल PS, P से लेके ये पूरा S, यहां पर आपको ये दिया हुआ है 280. ये पूरा कितना दिया है हमको? 280. देयरफॉर फाइंड PQ, QR, RS. सो बाय सीइंग द डायग्राम यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी. डायग्राम देख के हमको पता चल जाएगा कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है. ओके, क्या क्या दिया है देखो सॉल्यूशन में. We are given that PA perpendicular to AD, QB perpendicular to AD, RC is also perpendicular to AD, SD is also perpendicular to AD. This is given. And as all the lines are perpendicular on same line, as all the lines are perpendicular on same line, these perpendicular lines becomes parallel. Therefore, PA, QB, RC, SD, all segments are parallel to each other. If two or more lines are perpendicular to the same line, then they are parallel to each other. All the lines are perpendicular on same line, and therefore these lines are parallel to each other. And as the lines are parallel, we have a property that is intercept made by 3 parallel lines. Okay, यहाँ पे कितने parallel line है? 4 parallel line है. तो मैंने क्या लिखा देखो इसको, PQ is to QR is to RS is equal to what? 60 into is to 70 is to 80. ओके, मतलब ये कैसे आया है देखो, PQ is to QR is to RS is equal to what? Is equal to AB is to BC is to CD. और AB का आंसर कितना है? वहां पे दिया है 60. BC का कितना है? 70. CD का कितना है? 80. So next step, PQ is to, that is property of 3 parallel lines are there, transversal. अपने क्वेश्चन में क्या है? 4 पैरेलल लाइन है. ओके, तो इसलिए लिखने का मेथड हमारा थोड़ा चेंज हुआ है, रेशियो के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया. सो PQ is to QR is to RS is equal to 0 0 गया सब जगह का, that is 6 is to 7 is to 8. ओके, नाउ PQ is to QR is to RS is equal to 6 is to 7 is to 8. ओके, therefore for the same diagram let the common multiple be x. तो common multiple अगर x आता है तो PQ becomes 6x, QR become 7x, RS become 8x. Now this complete PS is equal to PQ plus QR plus RS, तीनों का एडिशन. अभी तीनों का आंसर तो है यहाँ पे. PS कितना था? 280, PQ 6x, ये 7x, 8x. ऐड करेंगे x को, 21x is equal to 280, फिर x is equal to 280 upon 21. X is equal to 280 upon 21. Go for cancellation. X is equal to 40 upon 3. X is equal to 40 upon 3. हमको क्या ढूंढना है? PQ. PQ का वैल्यू कितना है? 6 into x है, तो PQ is equal to 6 into x. 6 into x का वैल्यू कितना है? 40 upon 3. ओके, सो कैंसलेशन कैसे करेंगे? 3 1s are 3 2s are 40 into 2 is 80. Likewise QR is equal to 7x. 7 into 40 upon 3. ओके, तो यहां पे कैंसलेशन नहीं किया बिकॉज 3 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 7 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 3 ऐसे ही रखा. थर्ड वन इज RS इज 8x. 8 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 40 अपॉन 3. ओके, सो 3 ऐसे ही रखा, 8 इंटू 4 से मल्टीप्लाई किया, 320 अपॉन
3. So क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू क्यू आर आर एस. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ पी क्यू क्यू आर एंड आर एस. ओके, सो लेट अस मेक अ नोट ऑफ दिस. इसको एक बार वापस एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं. सो इन दिस केस दिस इज द गिवन डायग्राम. व्हाट अबाउट फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप में आपको दिया हुआ है पी ए परपेंडिकुलर, क्यू बी परपेंडिकुलर, आर सी परपेंडिकुलर, एस डी परपेंडिकुलर ऑन दिस कॉमन लाइन ए डी. ओके, ऑन दिस कॉमन लाइन ए डी. Then this is what? This is given. And as the all four lines are perpendicular, they are parallel to each other. So यहाँ पे हमने लिखा they are parallel to each other. Therefore PQ is to QR is to RS is equal to, वहाँ पे वैल्यू दिया है देखो 60 is to 70 is to 80. And therefore ये उसका रीजन हो गया. So PQ is to QR is to RS is equal to 60 into is to 70 is to 80. 0 0 वहाँ का जाएगा तो it becomes 6 is to 7 is to 8. As it is ratio, whenever in the question ratio is given, our step is let the common multiple be x, and therefore we have let the common multiple be x. तो आंसर क्या आया? 6 is to 7 is to 8 का आंसर हो गया 6x, 7x and 8x. कंप्लीट सेगमेंट P से लेके S इज इक्वल टू PQ प्लस QR प्लस RS. ओके, PS का वैल्यू है 280 और ये इन तीनों का वैल्यू ऊपर यहाँ पे आया है 6x प्लस 7x प्लस 8x. सो इट इज 21x is equal to 280, x is equal to 280 upon 21. By cancellation it is 40 upon 3. So first answer PQ is equal to 6x. 6 ऐसे ही रखा into x का वैल्यू 3 से डिवाइड किया becomes आंसर. सेकेंड में 3 से 7 को डिवाइड हो नहीं रहा है, सीधा मल्टीप्लाई किया और आंसर. थर्ड में RS is equal to 8x. 8 into x का वैल्यू 40 upon 3. 3 से वापस ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस 3 PQ, QR एंड RS. ये तीनों का फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इन ट्रायंगल PQR, सो देयर इज ट्रायंगल PQR, PM इज अ मीडियन. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है PM मीडियन है. मीडियन मतलब ये दोनों पार्ट इसके अभी इक्वल है. एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PMQ एंड PMR. सी PMQ का ये है एंगल बाइसेक्टर यहां पे, ठीक है, और PMR का ये है एंगल बाइसेक्टर यहां पर. ठीक है, सो इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PM इज अ मीडियन. ये है सेगमेंट PM विच इज मीडियन. ये दोनों पार्ट इक्वल. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PMQ. तो यहां पे क्या वर्ड यूज किया है देख लेंगे हम लोग. एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ विच एंगल्स PMQ एंड PMR. दैट इज PMQ का ये है एंगल बाइसेक्टर और PMR का ये है एंगल बाइसेक्टर. मतलब दो बार हो गया एंगल बाइसेक्टर. इसका मतलब हमको दो बार एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हमारा यूज करना है. ठीक है, और आगे चलते हैं. इंटरसेक्ट साइड PQ एंड PR एट पॉइंट X एंड Y. और क्या प्रूव करना है देखो, ये आपको प्रूव करना है XY इज पैरेलल टू QR. तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन से प्रॉपर्टी का टू प्रूव आता है कि हमको लाइन पैरेलल प्रूव करना है. यस, इट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इसका मतलब अपने क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का सीक्वेंस क्या हो गया. फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, अगेन एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. दो एंगल हमको दिया है एंगल बाइसेक्टर एंड थर्ड वन इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. दिस इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. आपको बोला है फिल अप द बॉक्सेस. देयरफॉर इन ट्रायंगल PMQ, ये है ट्रायंगल PMQ, इसमें ये बाइसेक्टर है. सो बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी आवर आंसर PX अपॉन XQ इज इक्वल टू MP अपॉन MQ. वो ट्रायंगल में जाएंगे तो इन ट्रायंगल PMR रे MY इज अ बाइसेक्टर. देयरफॉर आंसर PY अपॉन YR इज इक्वल टू MP अपॉन MR. नाउ बाय ऑब्जर्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे MP है, यहाँ पर भी MP है, विच इज सेम. और क्या है MQ एंड MR, लेकिन दे आर इक्वल दिया है देखो क्वेश्चन में. क्यों इक्वल है? बिकॉज वो सेगमेंट PM मीडियन है. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म इक्वल. राइट हैंड साइड इज इक्वल एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल. एंड देयरफॉर यहां पे लिखा है देखो, बट MP अपॉन MQ इज इक्वल टू MP अपॉन MR. M इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR, hence MQ is equal to MR, and therefore our left hand side is PX upon XQ is equal to PY upon YR. तो चेक करेंगे ये रेशियो हम लोग. PX upon XQ is equal to PY upon YR. This is nothing but the ratio of basic proportionality theorem. Therefore, we have line is parallel. Reason, converse of basic
प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. हमको क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी 2 बार यूज करना है. ये जो रेड दिख रहा है वो अपने टेक्स्ट बुक में बॉक्स दिया हुआ है, दैट इज फिलअप दिया हुआ है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10. इन द फिगर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी. अगेन बाइसेक्टर्स आपको दिया हुआ है. बाइसेक्टर्स आपको दिया हुआ है. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये बाइसेक्टर्स है तो हमको एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करना है. वापस एक बार एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हमको यूज करना है. तो 2 बार एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करेंगे. लाइन AX इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट Y. AX BC को Y में इंटरसेक्ट करेगा. AB इज इक्वल टू 5. उसके बाद AC इज इक्वल टू 4. BC इज इक्वल टू 6. क्या फाइंड करना है, AX अपॉन XY. देयरफॉर स्टेप नंबर 1, इन ट्रायंगल ABY, सी इन दिस ट्रायंगल. इधर वाले ट्रायंगल में ये है बाइसेक्टर, BX बाइसेक्ट्स एंगल B. सो बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या आएगा, देखो आंसर. यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी AX अपॉन XY इज इक्वल टू AB अपॉन BY. AX अपॉन XY इज इक्वल टू AB अपॉन BY. इक्वेशन नंबर 1 बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. एग्जैक्टली सेम वे उधर वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इन ट्रायंगल ACY दिस रे CX bisects angle C. Again by using angle bisector property we have AX upon XY is equal to AC upon CY. Now again by equation, from equation 1 and 2 you can see that this is left hand side which is same, जिसको आपको फाइंड भी करना है. ओके, तो इट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have AX upon XY is equal to AB upon BY as well AC upon CY. तीनों भी रेशो एक दूसरे को सेम है. अभी इसमें से क्या फाइंड करना है, खाली इतना ही फाइंड करना है. इन सब का आंसर तो हमको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो AX upon XY ऐसे ही रखा. AB प्लस AC अपॉन BY प्लस CY. इसको क्या बोलते हैं, इट इज थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज. मतलब क्या होता है, यू कैन ऐड न्यूमरेटर, यू कैन ऐड डिनोमिनेटर. ऐड करने के बाद भी उसका रेशो सेम ही वैल्यू होता है. ठीक है. सो वी हैव AX अपॉन XY इज इक्वल टू AB प्लस AC 5 प्लस 4 अपॉन BY प्लस CY को अगर ऐड करते हैं हम लोग, यहां पे देखो BY प्लस CY ऐड करते तो पूरा बनेगा BC. अभी BC का वैल्यू हमको दिया है यहां पे 6. सो AX अपॉन XY इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज 9 अपॉन 6. नाउ गो फॉर कैंसिलेशन. AX अपॉन XY का वैल्यू आप अगर कैंसिलेशन करते हो 3 के टेबल से, you will get answer as equal to 3 upon 2. So it is very simple question. इसको रिवाइज कर लेते. You can make a note of this. In triangle ABC, okay, in this bisector of angle B and bisector of angle C intersect each other at point X. Also ray AX intersect BC at point Y. So as एक बार एंगल बाइसेक्टर, दूसरी बार भी एंगल बाइसेक्टर, तो 2 बार हमको एंगल बाइसेक्टर दिया है. सो फर्स्ट इधर वाले ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करेंगे. AX अपॉन XY इज इक्वल टू AB अपॉन BY. AX अपॉन XY इज इक्वल टू AB अपॉन BY. एग्जैक्टली सेम वे वो साइड अगर हम लोग जाते हैं, इधर वाले ट्रायंगल में हम लोग जाते हैं तो ACY ट्रायंगल में CX बिकम बाइसेक्टर. सो अगेन आंसर इज AX अपॉन XY इज इक्वल टू AC अपॉन CY. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू कैन ऑब्जर्व दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज सेम. AX अपॉन XY जो आपको फाइंड भी करना है. सो देयरफॉर AX अपॉन XY इज इक्वल टू AB अपॉन BY एज वेल AC अपॉन CY. नाउ AX अपॉन XY एज इट इज, इसको ऐसे ही रखा और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने ऐड कर दिया. इट इज नोन एज थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज. मतलब वी कैन ऐड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. ऐड करने के बाद भी जो रेशियो आएगा उसका वैल्यू इक्वल ही होता है, सेम ही होता है. ओके. सो AX अपॉन XY इज इक्वल टू AB प्लस AC 5 प्लस 4 अपॉन BC. That is BY plus CY is equal to BC. BC का आंसर कितना है 6. So it is 9 upon 6. फिर 3 के टेबल से कैंसिलेशन करेंगे तो we'll get answer as 3 upon 2. So that's all about question number 10. ठीक है. Question number 11. In quadrilateral ABCD, what is given? Segment AD is parallel to segment BC. So we are given that segment AD is parallel to segment BC. So in this quadrilateral, one pair of opposite side is parallel. One pair of opposite side is parallel and therefore this quadrilateral is a trapezium. This is a trapezium. Also
diagonal intersect each other at point P. This we need to prove. Okay, so prove that AP upon PD is equal to PC upon BP. क्वेश्चन के गिवन में क्या क्या लिख सकते हैं? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AD is parallel to BC. ये जो दिया है ये क्वेश्चन के गिवन में हम लोग लिख सकते हैं. तो आपको ये क्या करना है? प्रूव करना है. सो एज अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल है, दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रापेजियम. क्या स्टेप था ट्रापेजियम का? व्हेनेवर इन द क्वेश्चन ट्रापेजियम इज गिवन, आवर फर्स्ट स्टेप इज कि कंसीडर टू ट्राइंगल्स एंड शो देम सिमिलर. दो ट्राइंगल को हमको कंसीडर करके उनको हमको सिमिलर प्रूव करना होता है. कौन से दो ट्राइंगल हमको सिमिलर प्रूव करना है? द ट्राइंगल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन पैरेलल लाइंस. सो एडी एंड बीसी के ऊपर जो ट्राइंगल प्रेजेंट है उनको हम लोग को प्रूव करना है कि दे आर सिमिलर. कौन सा टेस्ट आता है? हमेशा आता है ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. अच्छा, ए के लिए एंगल चाहिए हमको, तो कौन से एंगल आ सकते हैं? अपोजिट एंगल आएगा और अल्टरनेट एंगल आएगा. ठीक है, so this we need to prove. These are the names of triangle. In triangle APD and triangle CPB, take a proper correspondence. क्या क्या मैंने बोला था? vertically opposite, that is ये P angle और ये P angle, they are vertically opposite angle. As well A and C are the alternate angle. alternate मतलब Z होने वाला है C. ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये है उसका ट्रांसवर्सल. तो ये Z बन गया देखो यहाँ पे. सो दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, एंड देयरफॉर ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. नाउ इट इज वेरी सिंपल. टेक करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन. AP अपॉन PC इज इक्वल टू PD अपॉन PB. अपने क्वेश्चन में क्या चाहिए? AP अपॉन PD चाहिए, AP अपॉन PD चाहिए, और क्या चाहिए? PC अपॉन BP चाहिए. दैट इज बाय अल्टरनेंडो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आता है. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. प्रॉपर्टी इज नोन एज अल्टरनेंडो. ठीक है, लेट अस रिवाइज दिस. इन दिस क्वेश्चन, दिस क्वाड्रिलेटरल में, इन दिस क्वाड्रिलेटरल AD एंड BC आर पैरेलल, सो इट इज ट्रेपेजियम. तो ट्रेपेजियम में हमारे पास स्टेप क्या होता है कि दो ट्राइंगल हमको सिमिलर प्रूव करने होते हैं बाय ए टेस्ट. सो ये दो ट्राइंगल है, इनको वर्टिकली अपोजिट और अल्टरनेट एंगल लेके हमने सिमिलर प्रूव कर लिया. टेकिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन एंड जस्ट एडजस्टमेंट बाय अल्टरनेंडो, यू गेट अ फाइनल आंसर. ओके, सो दिस फॉर क्वेश्चन नंबर 11. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. So question number 12, in the given diagram xy parallel to AC, also 2 times AX is equal to 3 times BX and XY is equal to 9. Complete the activity to find the value of AC. So this is activity based question, that is 2 times AX is equal to 3 times BX. So इसका रेशियो बनाया हमने, AX upon BX is equal to 3 upon 2. Now by comparando डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड करेंगे, तो इट इज ये यहाँ पे गया और ये 2 यहाँ पे आया, 3 + 2 मिला के बनेगा 5. ठीक है, नाउ दीज आर द टू ट्राइंगल्स व्हिच आर सिमिलर टू ईच अदर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. हाउ इज दैट? दैट इज कॉमन एंगल है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग है, तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी triangles are similar. Now taking corresponding sides, BA upon BX is equal to AC upon XY. Now substitute values, BA upon BX 5 upon 2 आया था, देखो यहाँ पे, वहाँ पे वैल्यूज सब्सटीट्यूट किया, देन गो फॉर अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज AC is equal to 5 into 9 अपॉन 2. ओके, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, तो इसलिए जितना एक्टिविटी में उतना ही हमने लिया है. दिस इज एक्स्ट्रा स्टेप इफ यू वांट. ओके, 5 into 9 अपॉन 2 कैंसलेशन करेंगे तो यू विल गेट आंसर AC इज इक्वल टू 22.5. लेट अस रिवाइज दिस वंस. 2 times AX इज इक्वल टू 3 times BX. इसका पहले क्या करेंगे, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो दिस इज AX अपॉन BX इज इक्वल टू 3 upon 2. नाउ अकॉर्डिंग टू अवर एक्टिविटी नेक्स्ट स्टेप इज कॉम्पेरेंडो, तो ये 2 को ऊपर ऐड किया, BX को भी ऊपर ऐड किया. अभी AX और BX मिला के क्या बनेगा, AB. तो यहाँ पे AB अपॉन BX, यहाँ पे ऐड करेंगे 5 upon 2. नाउ दीज आर द टू ट्राइंगल्स BCA एंड BYX. BCA BYX सिमिलर टू ईच अदर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. AA का मतलब एंगल, कौन सा एंगल ले सकते हैं, B कॉमन एंगल ले सकते हैं, X और A करस्पॉन्डिंग है और Y एंड C ऑल्सो करस्पॉन्डिंग. आउट ऑफ 3 एनी 2 यू कैन कंसिडर for AA test. As the triangles are similar, corresponding sides are in proportion. Now just put the values.
बी ए अपॉन बी एक्स का वैल्यू यहाँ पे आया है 5/2, देन गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड बाय कैंसलेशन यू विल गेट आंसर AC इज इक्वल टू 22.5. Moving towards last question from the chapter, that is question number 13, which is the last question from the chapter. In the given figure, the vertices of square DEFG, मतलब क्या, क्वेश्चन में दिया है कि ये क्या है, स्क्वायर है. क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो स्क्वायर है. ये कोऑर्डिनेटर क्या दिया है, स्क्वायर है. ऑन साइड्स ऑफ ABC. ऑल्सो व्हाट इज गिवन, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये ऊपर मार्क किया है देखो 90 डिग्री का. ठीक है, क्या प्रूव करना है आपको, डी स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC, ये आपको प्रूव करना है. अच्छा, क्वेश्चन में हिंट भी दिया है. क्या है हिंट, देखो, शो दैट ट्रायंगल GBD सिमिलर टू ट्रायंगल CFE. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ओके, ये ट्रायंगल एक दूसरे को अगर हम लोग सिमिलर दिखा देते हैं तो अपना आंसर आने वाला है. ये क्वेश्चन में हमको बोला है. ठीक है, सो देयरफॉर स्टेप नंबर 1, वी नो दैट क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर. ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, एंड एज द क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर उसके चारों साइड्स इक्वल आएंगे. सो DE, चारों साइड DE, EF, GF एंड DE, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज रीजन साइड्स ऑफ स्क्वायर. ओके, हिंट के पीछे भागेंगे हम लोग अभी. तो देयरफॉर स्टेप नंबर 1, GF इज पैरेलल टू सेगमेंट DE. GF is parallel to segment D. Why so? Because these are the opposite sides of square. Square के वो क्या है, opposite side है. Therefore वो दोनों एक दूसरे को parallel है. That is GF is parallel to D. Also GF ऐसे ही रखा, D के बदले में क्या लिखा, BC लिखा. See here, GF is parallel to, अभी क्या आया पूरा BC. क्यों, पहले क्या लिखा था, D लिखा था. पूरा B डैश D डैश E डैश C पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये पूरा लाइन आया. ओके, एंड देयरफॉर ऑन ट्रांसवर्सल AB, ये AB ट्रांसवर्सल लिया, ये AB ट्रांसवर्सल लिया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दे आर इक्वल. ओके, विच एंगल, सी दिस एंगल B एंड एंगल G दे आर इक्वल. देखो यहाँ पे F बन रहा है ऐसे, दिस आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड देयरफॉर एंगल AGF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, करस्पॉन्डिंग एंगल. नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2, ये कहां पे सॉल्व किया, ट्रांसवर्सल AB के ऊपर. एग्जैक्टली सेम वे अगर मैं AC ट्रांसवर्सल कंसीडर करता हूं तो ऐसे ही करेंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल. सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, GF एंड BC आर पैरेलल लाइंस, और ट्रांसवर्सल मैंने चेंज कर दिया, AC ट्रांसवर्सल लिया. तो देयरफॉर एंगल AFG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB. These are the corresponding angles. तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या प्रूव किया कि ये दोनों एंगल, 3 में ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव किया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए चलते हैं अभी हम लोग. दैट इज, देखो अभी क्या प्रूव किया था हमने, ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव किया था. ऑल्सो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों हमने इक्वल प्रूव किया था. ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल AGF एंड DBG, सीयर, ये फर्स्ट ट्रायंगल कंसीडर करो और ये सेकेंड ट्रायंगल. इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल दिख रहा है, इट इज वेरी सिंपल. एंगल A 90 है तो यहां पे D 90 है, और ये दोनों करस्पॉन्डिंग था इक्वेशन नंबर 2 में. दैट इज these are the angles from equation number 2 which are corresponding angle and also each 90 degree, जो मैंने अभी आपको बोला. therefore these are the two triangles similar to each other by AA test of similarity. मतलब triangle 1 and triangle 2 ये दोनों सिमिलर आ गए. ठीक है, नाउ एग्जैक्टली सेम वे जैसे ट्रायंगल नंबर 1 और 2 हमने सिमिलर दिखाया, वैसे 1 और सपोज इसको 3 बोल दिया, इन दोनों को भी सिमिलर दिखाना है. पहले हमने क्या किया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाया. ठीक है, बाय AA टेस्ट. अभी ये ट्रायंगल सेम रहेगा, लेकिन इसके साथ में इसको सिमिलर दिखाना है. प्रॉपर्टी सेम आएगा, एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स. देयरफॉर सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में ही हमने प्रूव किया कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है करके, और ये ईच 90 डिग्री. ओके, सो देयरफॉर दीज आर द ट्रायंगल्स व्हिच आर सिमिलर टू ईच अदर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल का नाम क्या है, AFG, और यहाँ पे आएगा ACB, और यहाँ पे एंगल A 90 का, तो यहाँ पे एंगल E 90 का. ओके, बाय 8. अभी क्या प्रूव हुआ, देखो यहां पर जो प्रूव हुआ है और यहां पर जो प्रूव हुआ है. फर्स्ट में प्रूव हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बाद में प्रूव हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. तो ये ट्रायंगल दोनों में कॉमन है, ये ट्रायंगल दोनों में कॉमन है, AGF. इसका मतलब क्या हुआ,
अगर ये दोनों ट्राइंगल लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन है तो ये ट्राइंगल दोनों एक दूसरे को सिमिलर, जो हिंट में हमको दिया था कि इन दोनों को सिमिलर प्रूव करो, मतलब ट्राइंगल 1 2 को सिमिलर है, ट्राइंगल 1 3 को भी सिमिलर है, तो 1 कॉमन हुआ तो 2 and 3 आर सिमिलर टू ईच अदर, सो इट इज देयर इन नेक्स्ट स्लाइड। नाउ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जैसे हिंट में दिया था उसको फॉलो करके हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर लिया। नाउ टेकिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन, दैट इज फर्स्ट टू अल्फाबेट यहाँ पे लिखा है देखो, उसके बाद ये फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन एंड देयरफॉर वी हैव नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई किया देखो BD इंटू EC और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया EF इंटू DG। अभी हमारा आंसर हमको क्या चाहिए चेक करेंगे, सी BD इंटू EC, EF एंड DG इन दोनों के बदले में क्या लिखा देखो, D लिखा, क्यों लिखा, EF एंड D, ये बीच में स्क्वायर था ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 में, ऑल्सो DG ये भी तो स्क्वायर का साइड है, ये सब स्क्वायर था मतलब ये चारों भी साइड सेम था, तो उसके बदले में क्या लिखा D, तो D इंटू D स्क्वायर BD एंड C। ओके, ये अपना है फाइनल आंसर जो आपको प्रूव करना है, ठीक है। सो यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस, तब तक मैं उसको हर स्लाइड रिवाइज करके आपको दिखा रहा हूं अभी। सी दिस इज द गिवन क्वेश्चन में हमको पहले से दिया था कि ये पूरा क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, एज इट इज स्क्वायर उसका चारों साइड इक्वल है, ये इक्वेशन नंबर 1 में आया, ठीक है। अपने हिंट में क्या दिया है कि ये वाला ट्राइंगल दोनों को आप सिमिलर दिखाओ, एंड फॉर दैट हमारा स्टेप है GF एंड DE आर पैरेलल बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, तो ये वो स्टेप है, ठीक है। तो GF और DE के बदले में पूरा BC कंसीडर किया, B डैश E डैश C पूरा BC कंसीडर किया, तो GF इज पैरेलल टू BC। ओके, सो ऑन ट्रांसवर्सल AB ट्रांसवर्सल लेता हूं तो ये और ये एंगल दीज आर करस्पॉन्डिंग, फिर AC ट्रांसवर्सल लेता हूं तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग विच आर इक्वल, यहां पे हमने दोनों एंगल दिखाए, इक्वेशन नंबर 2 करस्पॉन्डिंग, उधर वाले एंगल इक्वेशन नंबर 3 अगेन दे आर करस्पॉन्डिंग। नाउ in these two triangles, these are the two triangles which are similar to each other by AA test। कहां से आया AA test, ये दोनों करस्पॉन्डिंग था, अभी प्रूव किया इक्वेशन नंबर 2 में, और ये 90 और ये भी 90, so these are the two triangles which are similar to each other by AA test of similarity। exactly same way वो साइड के दोनों ट्राइंगल by AA test of similarity। now in these two triangle AGF and AGF सेम है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे जो हमको हिंट में दिया था। नाउ टेकिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन, DB एंड EF, DG एंड EC, गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का आंसर। अभी इन दोनों के बदले में D लिख दिया, क्यों, बिकॉज दे आर द साइड्स ऑफ स्क्वायर, एंड फाइनल आंसर D स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू C। सो दिस इज द फाइनल आंसर जो हमको प्रूव करना है, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विथ चैप्टर नंबर 1, that is similarity। we need to revise the properties, जितने प्रॉपर्टी इसके अंदर है वो सब हमको रिवाइज करना है, एज वेल हर एक क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस में रखना है, सॉल्व करके देखना है। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट एंड यू कैन गेट योर डाउट सॉल्व। थैंक यू वेरी मच।